ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੀਫ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਦ ਇਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਜੀਐਨਪੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਐਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ। ਐਨਐਨਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਐਨਪੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਐਨਐਨਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਨਐਨਪੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਕਰਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਫਡੀਆਈ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਬਾय ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ। ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਮੇਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਰੂ ਮੋਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਫੋਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਸ ਸਟਾਕ, ਬੌਂਡ, ਅਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਫੋਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ। ਪੀ ਨੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪੇ ਕਰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫॉर ਅ ਲੋਨ। इट इज़ बाइंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट, जो पी नोट्स लीगल डॉक्यूमेंट है, मस्ट रिटन बाय हैंड पर्सन मेकिंग प्रॉमिस कॉल्ड मेकर, जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा मेकर एंड हूम पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड एज पे। ओपन मार्केट ऑपरेशन किहड़े टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकॉनमी, कि अगर आप जो मनी सप्लाई कंट्रोल करने इकॉनमी के आप यूज़ करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो आरबीआई है ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होंगे कि बाय या सैल करता सिक्योरिटी। रैपो रेट का मतलब होंगे कि जो सेंट्रल बैंक है मनी लैंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रैपो रेट का मतलब है कि जो आरबीआई बोरो कर रहा है मनी कमर्शियल बैंक तो। SLR जो बोलते हैं स्टैचुरी लिक्विड रेशो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक जो टोटल डिपॉजिट आपके को रखते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के कैश के फॉर्म च हो, गोल्ड के फॉर्म च हो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, जो आरबीआई ने सैट किया। करंट 2025 के स्लैब के अकॉर्डिंग 18% है, पहला 17% चल रहा है। फिर अपने को दो तरह के मैजरमेंट आते, क्वांटिटी मैजर इंस्ट्रूमेंट, एक होंगे क्वालिटेटिव मैजर इंस्ट्रूमेंट। तो जो अपने को बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट क्वांटिटिव है, CRR रैपो रेट, रिजर्व रैपो रेट, SLR सारे क्वांटिटिव है। मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, मोरल क्रेडिट रेशनिंग, फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, ऑल आर क्वालिटेटिव। नैक्सट एक गल याद रख लो, हाउ मच मनी या क्रेडिट वेयर मनी गोज एग्जिस्ट, कि कितना मनी या क्रेडिट एग्जिस्ट होया वो दैट इज इन क्वांटिटी, वेयर मनी जाऊगी कितों क्वालिटी है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1 करेंसी विद इन पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, की किन्नी जी करेंसी है पब्लिक को, कि डिमांड डिपॉजिट बैंक को पे, कि डिपॉजिट आरबीआई को। M2 की M1 तो पोस्ट ऑफिस सेविंग ऐड कर दो। M3 के आप करें M1 प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल तो कोऑपरेटिव बैंक। M4 कि M3 है उन टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पहला M2 की आया सेविंग, उत्थे हुण की आऊगा कि टोटल पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट है। फिर अपने को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद रखना लैंड लेबर कैपिटल तो एक्सपेंडरशिप आऊगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आऊगा लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइमरी सैक्टर के एम्पलॉय में रैड कॉलर वर्कर बोलते हैं, सैकेंडरी उन्होंने ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं, सर्विस सैक्टर में आप वाइट कॉलर बोलते हैं, सैकेंडरी ब्लू, प्राइमरी रैड कॉलर एंड सर्विस वाइट कॉलर। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई 2016 में 6 मैंबर कमेटी है, हैड कौन है आरबीआई का गवर्नर, 3 मैंबर कितों होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दसती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करता है फिस्कल पॉलिसी कि रेवेन्यू तो कि एक्सपेंडिचर होया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC जो बोलते हैं वो बेसिकली कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होंगे। NBFC डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कभी भी NBFC के डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होंगे। आरबीआई नैशनलाइज इन 1949, कदों आरबीआई नैशनलाइज कदों है 1949 के। SBI वाज फॉर्मड इन 1955, SBI कदों बने 1955 जिन्हें 3 बैंक मर्ज हुए थे, इंपीरियल बैंक 1969 के अंडर बैंकिंग नैशनलाइजिंग एक्ट 14 बैंक आर नैशनलाइज, SBI इज नोट इन 12, जो SBI है ना 12 के नहीं है। 1969 के बैंकिंग नैशनलाइजिंग एक्ट के 14 बैंक अपने को नैशनलाइज्ड होए सन। सैकेंड नैशनलाइजेशन कदों आई 1980 के। फर्स्ट आरबीआई नैशनलाइज कदों आया 1849 के। SBI फॉर्म कदों आया 1955 के। कदों क्यों आया क्योंकि 3 इंपीरियल बैंक्स मर्ज हो गए थे 1969 के। बैंकिंग रेगुलेशन बैंकिंग नैशनलाइजेशन एक्ट के अपने को 14 बैंक नैशनलाइज होए सी, SBI उन्होंने नहीं है। सैकेंड नैशनलाइजेशन कदों आई 1980 के, जिन्हें 6 बैंक्स होए, PNB इज़ वन ऑफ द दैम। SBI इज़ फर्स्ट पब्लिक सैक्टर बैंक।
SBI की है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। बेटा जब SBI बना 1955 में तभी वो नेशनलाइज हो गया था। तो 1969 में जब 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए तब SBI उसका पार्ट नहीं था, बिकॉज 1969 से ऑलरेडी पहले SBI 1955 में ही नेशनलाइज हो गया था। देन हमारे पास और 6 बैंक्स थे जो जब हमारे पास 1969 में किसकी गवर्नमेंट थी, दैट इज ऑफ इंदिरा गांधी। SBI फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। फिर हमारे पास आता है नवसीमा कमेटी, दैट इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म, एस तेंदुलकर कमेटी रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन, नवसीमा कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म, एस तेंदुलकर कमेटी रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन, शाह कमेटी रिफॉर्म्स ऑफ NBFC, शाह कमेटी रिफॉर्म ऑफ NBFC, NK Singh कमेटी रिव्यू ऑफ FRBM एक्ट, SEBI फॉर्म्स ऑन 12 अप्रैल 1988, स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन अ कंपनी, एंड बॉन्ड रिप्रेजेंट लोन टू एन एंटिटी। बॉन्ड बेसिकली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता बॉन्ड पे। यू पे अ बॉन्ड लेस देन इट्स फेस वैल्यू, यू रिसीव फुल फेस वैल्यू आफ्टर मैच्योराइजेशन ऑफ बिन। कि आपको जो यू हैव टू पे, आपको कम पे करना होगा फेस वैल्यू से, बट जब वो मैच्योर हो जाएगा तो आपको फेस वैल्यू पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट है डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन कम होना। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगेंट हो जानी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जानी और इन्फ्लेशन बढ़ जानी। कॉर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में चेंज आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। जो होलसेल है, होलसेल लेवल पे होगा। कंज्यूमर इज बेसिकली प्राइस चेंज एट कंज्यूमर लेवल। जो स्कोप है होलसेल का सिर्फ गुड्स पे, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है गुड्स एंड सर्विस दोनों पे है। बेस ईयर 2011 भरा है, कंज्यूमर प्राइस का 2012 है। फिस्कल डिफेक्ट का मतलब होता है कि कितना गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर और कितना टोटल रिसिप्टेड। बजट 2025 में जो फिस्कल डिफिसिट है वो 4.4% था सेंट्रल गवर्नमेंट का और 3.8 था पंजाब गवर्नमेंट का। सेस सरचार्ज, सेस लीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और बेसिकली एक सरचार्ज का एक एडिशनल चार्ज है एग्जिस्टिंग टैक्स पे, मतलब टैक्स पे टैक्स लगाना, दैट इज कॉल्ड ए सरचार्ज। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, टैक्स इवेजन इज क्राइम। अगर टैक्स अवॉइड कर रहे हो दैट इज लीगल, टैक्स इवेजन इज क्राइम। अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगारंजन कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी। अलग लकड़वाला, तेंदुलकर एंड रंगाराजन। डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जहाँ पे जो मोर पीपल आर वर्किंग देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। फिलिप कर्व बेसिकली रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन का। जो गिनी कोफिशिएंट है वो डिफाइन करता है कितनी इनकम इनक्वालिटी आई है लॉरेंस कर्व में। गिनी कोफिशिएंट का जो वैल्यू है 0 to 1 है, 0 परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 परफेक्ट इनक्वालिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड कर रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज बेसिकली डिफाइन एन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्रीन GDP बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ में से अगर हम इन्वायरमेंट चेंजेस को सब्ट्रैक्ट कर दे दैट इज ग्रीन GDP। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF, 5 करेंसीज है, US डॉलर, यूरो, रेनबी, येन एंड पॉन्ड। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF 5 करेंसीज पे है, US डॉलर, यूरो, रेनबी, येन एंड पॉन्ड। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब होता है डोनर रिस्टोर ट्रेड, नो कोई भी लिमिट नहीं होगी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी मतलब है बेसिकली ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडी अलाउड बट मार्केट डिस्टॉर्टिंग एंड प्रोडक्शन लिमिटिंग, मतलब प्रोडक्ट की भी लिमिटिंग है, डिस्टॉर्टिंग भी नहीं कर सकते और लिमिट है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी इज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ऑल द 3 सब्सिडीज आर होलसेल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है। फिस्कल डिफिसिट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हमने गवर्नमेंट रेसिपिट माइनस कर देना एक्सक्लूडिंग बोरो। प्राइमरी डिफिसिट होता है फिस्कल डिफिसिट में हमने इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करनी है। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है कि जब रेवेन्यू को एक्सपेंडर बहुत ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू रेसिपिट से। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट गिवन फॉर कैपिटल एसेट। लास्ट हमारे पास आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बेसिकली एक प्राइवेट पूल्ड इन्वेस्टमेंट है व्हीकल के ऊपर विच कलेक्ट फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर वेदर इंडियन और फॉरनर। AIF रेगुलेटेड बाय सेबी, इट हैज 3 कैटेगरीज। इसकी कितनी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।